بسم الله الرحمن الرحیم۔ بد وقت کا انجام۔ حضرت سیدنا عمر فاروق صلی اللہ علیہ کی ملاقات مدینہ منورہ کے نواح میں ایک نوجوان سے ہوئی۔ آپ کی اللہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نہایت گستاخانہ انداز میں کہا، میرا نام جمرہ چنگاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ نے پوچھا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرے باپ کا نام شہاب شلہ ہے۔ آپ علی شاہ نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کسی قبیلہ سے ہے؟ اس نے کہا، میرا تعلق ہرقہ آگ سے ہے۔ آپ ہی اللہ نے پوچھا کہ تم رہتے کہاں ہو؟ اس نے کہا، میرا گھر ہرا گرمی میں ہے۔ آپ دلیا نے اس کے بےہودہ جوابات سننے کے بعد فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کا پتہ کرو، وہ یقیناً جل کر مر گئے ہوں گے۔ چنانچہ جب وہ بدبخت اپنے گھر گیا تو اس کے گھر کو آگ لگ چکی تھی اور اس کے گھر والے سب جل کر مر چکے تھے۔ بد وقت کا انجام۔ حضرت سیدنا عمر فاروق صلی اللہ علیہ کی ملاقات مدینہ منورہ کے نواح میں ایک نوجوان سے ہوئی۔ آپ کی اللہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نہایت گستاخانہ انداز میں کہا، میرا نام جمرہ چنگاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ نے پوچھا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرے باپ کا نام شہاب شلہ ہے۔ آپ علی شاہ نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کسی قبیلہ سے ہے؟ اس نے کہا، میرا تعلق ہرقہ آگ سے ہے۔ آپ ہی اللہ نے پوچھا کہ تم رہتے کہاں ہو؟ اس نے کہا، میرا گھر ہرا گرمی میں ہے۔ آپ دلیا نے اس کے بےہودہ جوابات سننے کے بعد فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کا پتہ کرو، وہ یقیناً جل کر مر گئے ہوں گے۔ چنانچہ جب وہ بدبخت اپنے گھر گیا تو اس کے گھر کو آگ لگ چکی تھی اور اس کے گھر والے سب جل کر مر چکے تھے۔ پوچھا کے ساتھ اللہ نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ اس گھڑ سوار نے کہا کہ لشکر اسلام کو فتح ہو گئی اور ایرانی فوج شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ گئی ہیں۔ آپ دلیا مسلسل اس گھڑ سوار کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ جب آپ لی ہے اس گھڑ سوار کے ساتھ شہر کی حدود میں داخل ہوئے تو لوگوں نے آپ دلیل اللہ کو امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا۔ اس گھڑ سوار نے جب لوگوں کی زبانی سنا تو گھوڑے سے اتر آیا اور حضرت سیدنا عمر فاروق صلی اللہ علیہ سے معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ یا اللہ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، تم مجھے معرکہ کی تفصیل بتاؤ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق صلی اللہ علیہ قادسیہ کے میدان میں مسلمانوں کی فتح سے بے حد خوش تھے، کیونکہ یہ کامیابی مسلمانوں کو 3 زبردست خونی مارکوں کے بعد ملی تھی۔ جنگ قادسیہ کو عربی زبان میں یوم الاماس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پوچھا کے ساتھ اللہ نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ اس گھڑ سوار نے کہا کہ لشکر اسلام کو فتح ہو گئی اور ایرانی فوج شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ گئی ہیں۔ آپ دلیا مسلسل اس گھڑ سوار کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ جب آپ لی ہے اس گھڑ سوار کے ساتھ شہر کی حدود میں داخل ہوئے تو لوگوں نے آپ دلیل اللہ کو امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا۔ اس گھڑ سوار نے جب لوگوں کی زبانی سنا تو گھوڑے سے اتر آیا اور حضرت سیدنا عمر فاروق صلی اللہ علیہ سے معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ یا اللہ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، تم مجھے معرکہ کی تفصیل بتاؤ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق صلی اللہ علیہ قادسیہ کے میدان میں مسلمانوں کی فتح سے بے حد خوش تھے، کیونکہ یہ کامیابی مسلمانوں کو 3 زبردست خونی مارکوں کے بعد ملی تھی۔ جنگ قادسیہ کو عربی زبان میں یوم الاماس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بیت المقدس کی فتح اور حضرت سیدنا بلال علی اللہ کا اذان دینا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح صلی اللہ علیہ کی قیادت میں لشکر اسلام نے بیت المقدس پر چڑھائی کی تو عیسائیوں نے اتنی بڑی تعداد میں لشکر اسلامی دیکھ کر ہتھیار ڈال دیے اور صلح کی درخواست کی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ معاہدہ امن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق صلی اللہ علیہ ہاں آ کر خود تحریر فرمائیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح صلی اللہ علیہ نے ساری صورتحال حضرت سیدنا عمر فاروق کو لکھ بھیجی، جس پر آپ علی حضرت سیدنا حسین مانی الی اللہ کو مدینہ منورہ میں حاکم مقرر کر کے خود بیت المقدس روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کی اپنے ایک غلام کے ہمراہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آپ اللہ نے اپنے غلام کے ساتھ یہ طے کیا کہ کچھ راستہ وہ ان پر سوار ہوں گے اور وہ پیدل چلے گا، اور کچھ راستہ وہ ان پر سوار ہوگا اور وہ پیدل چلیں گے۔ چنانچہ اس طرح قریب بقریب سفر کرتا ہوا یہ قافلہ بیت المقدس پہنچ گیا۔ جس وقت یہ دونوں حضرات بیت المقدس میں داخل ہوئے تو اس وقت ان پر غلام سوار تھا اور آپ علی نے ان کی مہار تھام رکھی تھی۔ عیسائیوں نے سمجھا کہ شاید ان سوار ہی امیر المومنین ہیں، اس لیے انہوں نے بڑی خاطر مدارت کی اور شاندار استقبال کیا۔
इस दौरान हजरत अबू अबीदा बिन अजराह, हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत यजीद बिन अबी सफियन मुनीम आ गए, और इन्होंने जब हजरत सीदना उमर फारूक ही अल्लाह को देखा तो वो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि के लिबास पर बेशुमार पैवनद लगे हुए थे, जबकि उन हजरत ने कीमती लिबास पहन रखे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि ने इंतहाई गजबनाक अंदाज में उनसे फरमाया कि तुम लोगों ने इतनी जल्दी उजवियों की सी सूरत बनाई। इन्होंने अर्ज किया, अमीर अल-मोमिनीन, हमारे इन लिबासों के नीचे हथियार हैं और हम अब भी अरबी अखलाक पर कायम हैं, जिससे आप अलैहि को तसल्ली हुई। जिस वक्त हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु अलैहि रोसा बीत अल-मक़दस से मिलने के लिए रवाना होने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि को कीमती लिबास पहनने के लिए दिया गया, जिसे आप ही है ने ये कह कर इनकार कर दिया कि हमारी इज्जत इस्लाम से है ना कि लिबास है। फिर आप ली है और रोसा बीत अल-मक़दस के दरमियान अमन मुआहदा तय पाया गया, जिस पर दोनों जानिब से अकाबिरीन ने दस्तखत किए। हजरत सीदना उमर फारूक बीत अल-मक़दस में दाखिल हुए। आप दलील अल्लाह ने हजरत सीदना बिलाल अली अल्लाह जो के हजरत अबू अबीदा बिन अजराह अली अल्लाह के लश्कर में शाम की मुहिम में शामिल थे, उनको अजान देने की दरख्वास्त की। हजरत सीदना बिलाल दी अल्लाह ने आप अल्लाह की फरमाइश पर अजान दी, जिससे ज़माना नबी से काम की याद ताज़ा हो गई और रोते रोते अहल इस्लाम की हिचकियाँ बंद गईं। हर मजान का कबूल इस्लाम। इराक की फतह के बाद यज़दगरद जो कि भाग कर रहे चला गया था, वो वहाँ से इस्फहान और किरमान से होता हवा खरासान चला गया और मर्द में क़याम पजीर हो गया। 17 दो चश्मे में हजरत सीदना उमर फारूक अली अल्लाह ने हजरत अब्बू मूसा अशअरी सल्लल्लाहु अलैहि को बसरा का गवर्नर मुकर्रर किया। जब हजरत अब्बू मूसा अशअरी सल्लल्लाहु अलैहि गवर्नर के मनसब पर बैठे तो अहवाज ने जजिया देना बंद कर दिया, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि ने अहवाज पर फौज कुशी की और उसको फतह कर लिया। अहवाज की फतह के बाद हजरत अब्बू मूसा अशअरी अली अल्लाह ने मनाजर पर फौज कुशी की और इसे फतह किया। इस दौरान आप ही को खबर मिली कि ख़ुज़स्तान में रमज़ान लश्कर इस्लाम से मुकाबले के लिए फौज तैयार कर रहा है। आप ली है इस इत्तला के मिलने के बाद ख़ुज़स्तान रवाना हो गए। कुछ दिनों के मुकाबले के हर मरान ने शिकस्त तस्लीम कर ली और इस शर्त पर गिरफ्तारी दी कि उसका फैसला अमीर अल-मोमिनीन हजरत सीदना उमर फारूक अली अल्लाह करेंगे। हजरत अब्बू मूसा अशअरी सल्लल्लाहु अलैहि ने रमज़ान की शर्त मंजूर कर ली और इसे मदीना मनूरा हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु अलैहि की खिदमत में रवाना कर दिया। रमज़ान की बदअहदी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि ने इसका सरकलम करने का हुक्म दिया। रमज़ान ने कहा कि पहले मुझे पानी पिलाओ। जब इसके लिए पानी लाया गया तो इसने पानी पीने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं पानी नहीं पीऊंगा क्योंकि तुम मुझे पानी पीते हुए कत्ल कर दोगे। हजरत सैयदना उमर फारूक सल्लल्लाहु अलैहि ने जब इससे ये अहद किया कि उसे पानी पीते हुए कत्ल नहीं किया जाएगा तो इसने पानी का प्याला जमीन पर गिरा दिया और कहा, अब आप ली है मुझे कत्ल नहीं कर सकते क्योंकि वो पानी ही न रहा जिसके पीने के बाद आप लिया है, मुझे कत्ल कराते। इसके बाद रमज़ान ने कलिमा पढ़ लिया और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया और कहने लगा कि मैं पहले ही ईमान ला चुका था, लेकिन इस वजह से इकरार नहीं किया कि कहीं आपकी ये ना समझें कि मैं जान बचाने की गर्ज से ईमान लाया हूँ। रमज़ान ने इस्लाम कबूल करने के बाद मदीना मुनव्वरा में रहाइश इख्तियार की और हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु अलैहि ने इसका 2000 सालाना वजीफा मुकर्रर किया। आप लैला ईरान की मुहम्मद के बारे में इससे मशवरा किया करते थे। हजरत उमर वाउ बिन अलास रज़ी अल्लाह अन्हा से जवाब तलबी। हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु अलैहि ने हजरत उमरू बिन अलास सल्लल्लाहु अलैहि को मिस्र का गवर्नर बनाया तो कुछ अर्सा के बाद आप दलील अल्लाह को इत्तला मिली कि हजरत उमर वाउ बिन अलास लैला ने अपने ज़राए से बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली है। आप बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली है। आप अलैहि ने हजरत उमरू बिन अलास लैला से जवाब तलबी से जवाब तलबी फरमाई तो हजरत उमर वाउ बिन अलास दी अल्लाह ने जवाबा आप अली को तहरीर फरमाया कि अमीर अल-मोमिनीन जिस माल का आप अलैहि ने जिक्र फरमाया है तो वो मेरे पास इसलिए जुमा हो गया है कि हम ऐसी सरजमीन में मौजूद हैं जहाँ चीज़ें बहुत अर्ज़ां हैं और दुश्मनों से लड़ाइयाँ भी कसरत से होती हैं, जिसकी वजह से मेरे पास माल व दौलत की कसरत हो गई है। अल्लाह ताला की कसम, अगर आप अली अल्लाह के साथ खयानत करना हलाल भी होता तो मैं कभी ना करता। आप अली ने मेरे जिम्मा अमानत लगाई है और मेरा नसब भी ऐसा है कि मैं खयानत का सोच भी नहीं सकता। अगर आप भी उनके पास कोई ऐसा शख्स है
जो मुझसे बेहतर मिस्र गवर्नर साबित हो सकता है तो आप ली अल्लाह इसको तैनात कर सकते हैं। हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु ने हजरत उमरू बिन अलास सल्लल्लाहु के खत के जवाब में तहरीर फरमाया कि ए उमरू, मैंने तुमसे जो पूछ की है इसमें मेरा कोई जाती मफाद नहीं है। मैं तुम्हारे पास हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिमा लिया को भेज रहा हूँ, तुम अपना आधा माल इसके हवाले कर दो। बीत अलमाल का क़याम हजरत सीदना उमर फारूक अली के दूर खिलाफत में मारज वजूद में आया। हजरत अब्बू हरीरा इला अल्लाह से मरुए है कि हजरत अब्बू मूसा अशरी अली इला 8 लाख दिरहम लेकर हजरत सीदना उमर फारूक अली उनकी खिदमत में हाजिर हुए। इतनी कसीर रकम चूंकि फौरी तौर पर खर्च नहीं की जा सकती थी, इसलिए आप अली ने इस रकम को अपने पास रख लिया। इस रात आप अल्लाह रात भर सो न सके और यही सोचते रहे कि इतनी बड़ी रकम को कैसे खर्च किया जाए। फजर की नमाज के वक्त आप अलिफ की जुजा ने आप लैला से रात भर ना होने की वजह दरियाफ्त की तो आप ही अल्लाह ने फरमाया कि मेरे पास लोगों की अमानत मौजूद थी और इतना माल दीन इस्लाम के बाद कभी भी हमारे पास नहीं आया। मुझे खतरा था कि कहीं मैं मर जाऊं और ये माल मेरे पास रह जाए। इसके बाद आप ये ने सुबह तमाम अकाबर सहाबा किराम GM को इकट्ठा किया और उनसे राय तलब फरमाई कि इन्हें इस रकम का क्या करना चाहिए। किया मैं लोगों को नाप तोड़ कर सारी रकम तकसीम कर दूं। अकाबर सहाबा किराम भी अल्लाह ने बैक जबान होकर कहा, ऐसे मत कीजिए, लोग इस्लाम में दाखिल होते रहेंगे और माल कसीर होता रहेगा। आप लिया है लोगों को लिख कर दे जाए, बस जब कभी लोग ज्यादा हों और माल ज्यादा हो तो आपकी और उसी तहरीर के मुताबिक उनको देते रहेगा। हजरत सीदना उमर फारूक अदलिया ने फरमाया कि फिर मैं इसकी तकसीम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु काम के खानदान से शुरू करूंगा और इसके बाद हजरत सीदना अब्बू बकर सिद्दीक सल्लल्लाहु का खान इन और फिर तरतीब से चुनाचे रजिस्टर तैयार किया गया, जिसमें बनी हाशिम पहले, बनी मतलब दूसरे, बनी अबद शम्स तीसरे, बनी नौफल चौथे, बनी अबद मनाफ पांचवीं, बनी अबद शम्स छठे और उसी तरह बाकी तरतीब बनाई गई। बीत अलमाल से वजीफा मुकर्रर किया जाना। हजरत सीदना उमर फारूक इला अल्लाह खलीफा मुकर्रर होने से पहले तिजारत किया करते थे, जिसके जरिए वो अपने अहल के गुजर बसर का इंतजाम करते थे। जब आपके कंधों पर खिलाफत का बोझ आया तो तिजारत को मजीद जारी रखना मुमकिन न रहा, चुनांचे लोगों ने अब्दलिया को हजरत सीदना अब्बू बकर सिद्दीक की तरह बीत अलमाल से वजीफा लेने की तजवीज़ पेश की। हजरत सीदना उमर फारूक अली ने अपने लिए वही वजीफा मुकर्रर किया जो हजरत सीदना अब्बू बकर सिद्दीक अली के लिए मुकर्रर था। कुछ अरसा गुजरने के बाद ये वजीफा आप ये के लिए नागुज़ीर हो गया और गुजर बसर में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा ने आपकी के वजीफा में इजाफा की दरख्वास्त दीगर अकाबर सहाबा किराम नबी अलैहि के सामने की, जिस पर तमाम सहाबा किराम में हमने मुत्तफ़िक़ा तौर पर आप लिया के वजीफा में इजाफा की मंजूरी दे दी। इंसाफ का तकाजा हजरत सैयदना उमर फारूक बुलाया और हजरत अबी बिन कब अली के दरमियान कुछ तनाज़ो पैदा हो गया। आप सल्लल्लाहु ने हजरत अबी बिन कब बिल्ली से फरमाया कि तुम अपने और मेरे दरमियान फैसले के लिए कोई मुनसिफ मुकर्रर कर लो। चुनांचे हजरत अबी बिन कब इला अल्लाह ने उस वक्त के काजी हजरत जैद बिन साबित रज़ी उद्दीन को फैसले के लिए मुकर्रर किया। जब दोनों हजरत जैद बिन साबित सल्लल्लाहु के घर पहुंचे तो हजरत जैद बिन साबित सल्लल्लाहु ने आप ही उनको देखकर अपनी जगह छोड़ दी और उनसे बैठने की दरख्वास्त की। हजरत सीदना उमर फारूक अली अल्लाह ने हजरत उमरू बिन अलास सल्लल्लाहु जो के मिस्र के गवर्नर थे, उनको जब इस वाक़या की इत्तला मिली तो इन्होंने उन दोनों हजरत को बुलाया और उनके सर मनरू दिए। हजरत सीदना उमर फारूक अली को इस वाक़या की इत्तला हुई तो इन्होंने हजरत उमरू बिन अलास सल्लल्लाहु से कहलवा भेजा कि अबद अर्रहमान कौम के कजावे पर बिठाकर मेरे पास भेजो। चुनांचे जिस वक्त अबद अर्रहमान मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो हजरत सीदना उमर फारूक दी अल्लाह ने इन्हें उसी कोड़े लगाए। इस वाक़या के एक माह बाद अबद अर्रहमान अली अल्लाह विसाल फरमा गए। हजरत जैद बिन साबित दी अल्लाह से फरमाया कि मैं यहाँ उस वक्त अपने और अबी बिन कब के फैसले के लिए आया हूँ, इसलिए इस जगह नहीं बैठ सकता। चुनांचे हजरत जैद बिन साबित सल्लल्लाहु ने आप दोनों हजरात के माबैन फैसला फरमाया। फैसला कुरान व सनत की रोशनी में है। हजरत जैद बिन असलम दिल्ली से मरुए है, फरमाते हैं कि हजरत सीदना उमर फारूक ने मस्जिद नबवी से हम की तोसी का इरादा किया तो मस्जिद नबवी के गर्द मकानात खरीद कर
इन्हें मस्जिद नबवी से हमें शामिल करने का इरादा किया। मस्जिद नबवी से काम से मुल्हका मकानों में एक मकान हजरत सीदना अब्बास अल्लाह का था। आप दिल्ली अहलिया ने इस मकान को बेचने से इनकार कर दिया। चुनांचे दोनों हजरत हजरत अबी बिन कब भी अल्लाह के पास फैसले के चले गए। हजरत अबी बिन कब अल्लाह ने फैसला हजरत सीदना अब्बास अली अल्लाह के हक में करते हुए कहा कि किसी हाकिम को ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपनी रियाया की मलकियत को ज़बरदस्ती खरीद फरमाए। तब हजरत सीदना उमर फारूक अली ने हजरत अबी बिन कब अल्लाह से दरियाफ्त किया कि उनका ये फैसला कुरान की रोशनी में है या सुन्नत नबवी से काम की रोशनी में। हजरत अबी बिन कब अल्लाह ने जवाब दिया कि मेरा फैसला सुन्नत नबवी से काम की रोशनी में है। हजरत सीदना उमर फारूक अल्लाह ने हजरत अबी बिन कब अल्लाह के फैसले को तस्लीम कर लिया। हजरत सीदना अब्बास अलैहि ने इस फैसले के बाद अपना मकान फी सबील अल्लाह हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु को दे दिया था कि वो मस्जिद नबवी से काम की तौसीफ़ फरमा सकें। बेटे पर शरीयत खुद नाफिज फरमाई। हजरत अब्दुल्ला बिन उम लेना से मरुए है, फरमाते हैं कि मेरे भाई अबद अर्रहमान सल्लल्लाहु ने और उनके साथ अब्बू सरुआ अल्लाह ने शराब पी और बदमस्त हो गए। उस वक्त ये दोनों मिस्र में थे। मेरे वालिद मोहतरम हजरत सीदना उमर फारूक की खिलाफत का ज़माना था, इंसाफ को मलहूज रखते थे। हजरत अनस बिन मालिक दिल्ली से रिवायत है कि मिस्र के बाशिंदों में से एक हजरत सीदना उमर फारूक की अल्लाह की खिदमत में अयाम हज के दौरान हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि अमीर अल-मुमिनीन मुझे पनाह दे जाए। आप दलिया ने उसे अमान दी तो उसने अर्ज किया कि मेरा मुकाबला हजरत उमरू बिन अलास बिल्ली के साहिबजादे मोहम्मद बिन उमरू से दौड़ का मुकाबला हुआ। मैं इससे दौड़ जीत गया तो इसने मुझे कोड़े मारना शुरू कर दिए और कहता गया कि मैं बड़े आदमी का बेटा हूँ। हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु ने ये बात सुनकर हजरत उमरू बिन अलास को तलब फरमाया और फिर इस मिस्री को कोड़ा देते हुए हुक्म दिया कि वो उनको मारना शुरू कर दे। इस मिस्री ने कोड़े मारना शुरू किए तो हजरत सीदना उमर फारूक अली अल्लाह साथ फरमाते जाते बार मलामत किए गए हुए के बेटे को हक बात का फैसला हजरत सईद बिन मुसैयब अल्लाह से मरुए है, फरमाते हैं कि एक मुसलमान और एक यहूदी हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु के पास अपने झगड़े के फैसले के लिए आए। आप सल्लल्लाहु ने दोनों तरफ का मौक़िफ़ सुनने के बाद यहूदी के हक में फैसला कर दिया। यहूदी ने जब हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु का फैसला सुना तो कहने लगा, खुदा की कसम आप ली अल्लाह ने हक बात का फैसला किया। हजरत सीदना उमर फारूक अल्लाह ने इसे कोड़े से टोकते हुए फरमाया, तुझे कैसे पता कि मैंने हक फैसला किया है? यहूदी ने कहा, मैंने तौरीत में लिखा देखा है कि जो काजी हक के साथ फैसला करता है इसके दाएं और बाएं जानिब दो फरिश्ते होते हैं जो इसको राह रास्त पर कायम रहने की तौफीक देते हैं, यहाँ तक कि वो हक के साथ फैसला करता है। अल्लाह और इसके रसूल ने अलैकुम का आज़ाद करदा गुलाम है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ललाइना से मरुए है, फरमाते हैं कि एक जारिया ने हजरत सीदना उमर फारूक अली की खिदमत में हाजिर होकर शिकायत की कि मेरे आका ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया और मुझे आग पर बिठाया, यहाँ तक कि मेरी पेशाबगाह जल गई। हजरत सीदना उमर फारूक अल्लाह ने इससे दरियाफ्त किया कि क्या तेरे आका ने वो एक खुद देखा जिसका इसने इल्ज़ाम लगाया? इस जारिया ने कहा, नहीं। हजरत सीदना उमर फारूक अल्लाह ने उस शख्स को तलब किया और इस शख्स से दरियाफ्त किया, क्या तूने इस औरत में वो ऐब देखा जिसका तूने इस पर इल्ज़ाम लगाया? उस शख्स ने कहा, नहीं, मैंने इसमें ऐब नहीं देखा, बस मुझे उसके बारे में बदगमानी पैदा हो गई थी। हजरत सीदना उमर फारूक अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मैंने रसूल अल्लाह से इल्म को फरमाते सुना है कि गुलाम अपने आका है और बच्चा अपने वालिद से कसास ना ले, और अगर मैंने ये ना सुना होता तो मैं तुझसे उसका बदला जरूर लेता। इसके बाद हजरत सीदना उमर फारूक अल्लाह ने उस शख्स को 100 कोड़े लगाए और इस औरत को आज़ाद कर दिया और फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह से काम से सुना है कि जसन की सूरत बगाड़ी गई या जो आग में जलाया गया वो अल्लाह और इसके रसूल लेने का काम का आज़ाद करदा गुलाम है। जवाहरात भी तलमाल में जुमा करवा दिए। हजरत मालिक बिन ओस बिल्ली से रिवायत है कि बादशाह रूम का एलची हजरत सीदना उमर फारूक अल्लाह की खिदमत में आया तो हजरत सीदना उमर फारूक अली की जूजा ने किसी से 1 दीनार उधार लेकर इससे अतर खरीदा और इसको शीशे के बर्तनों में बंद करके
इसैची के हाथ रूम की मलका को भेज दिया। जब कासद वापस पहुंचा तो इसने मलका रूम को वो तोहफा पेश किया। मलका रूम ने उन बर्तनों को खाली करवाने के बाद इन बर्तनों को जवाहरात से भरकर इस एंची को दे कि वो उसे आप अलकी ने वजह के पास ले जाए। जब इस एंची ने वो जवाहरात से भरे बर्तन हजरत सीदना उमर फारूक अली की जूजा को देते तो इन्होंने वो बर्तन बिस्तर पर अलट दिए। आप ही घर में दाखिल हुए। आप अलही ने बीवी से इन जवाहरात के मुतालिक दरियाफ्त किया तो इन्होंने सारा माजरा बयान कर दिया। आप अली ने वो जवाहरात फरोख्त कर दिए और 1 दीनार अपनी बीवी को दिया और बाकी माल भी तलमाल में जुमा करवा दिया। अबद अल्लाह बिन उमर अली अमा को तंबी फरमाना। हजरत अबद अल्लाह बिन उमर ये जना से मरुए है, फरमाते हैं कि मैंने एक ऊँट खरीदा और इसे चरागाह में ले गया। जब वो ऊँट मोटा हो गया तो मैं इसे बाजार में फरोख्त करने के लिए ले गया। इस दौरान हजरत सीदना उमर फारूक अली बाजार में तशरीफ ले आए। इन्होंने जब मोटा ताज़ा ऊँट देखा तो दरियाफ्त किया कि यह ऊँट किसका है। आप अटली है को बताया गया कि ये ऊँट आप सल्लल्लाहु अल्लाह के साहिबजादे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बनी नजना का है। आप दिल अल्लाह ने मेरा नाम सुनकर फरमाया, वाह वाह अबद अल्लाह, ये के किया। कहने वो तो अमीर अल मोमिनीन का बेटा है। हजरत उबैद अल्लाह बिन उमर अली का फरमाते हैं, इस दौरान में भागता हुआ आप अली के पास पहुंचा। आप वली अल्लाह ने मुझसे दरियाफ्त किया कि ये ऊँट कैसा है। मैंने अर्ज किया कि मैंने ऊँट खरीदा और इसे चरागाह में छोड़ दिया। जब वो सेहतमंद हो गया तो मैं इसे फरोख्त करने के लिए बाजार में लिए आया। हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उनको चरागाह में छोड़ दिया और लोगों ने इस डर से इसका ख्याल रखा कि ये अमीर अल मोमिनीन के बेटे का ऊँट है, इसका ख्याल रखो। अब तुम इस ऊँट को फरोख्त करने के बाद अपनी असल रकम खुद रखो और बाकी रकम भी तलमाल में जुमा करवाओ। हजरत सीदना अबद अल्लाह मामला खिलाफत से सरासर छूट जाऊं। हजरत सीदना अबद अल्लाह बिन अब्बास अली जना से मरुए है, फरमाते हैं कि हजरत सीदना उमर फारूक दिया है, नमाज से फारिग होते तो लोगों के लिए बैठ जाते और अगर किसी को कुछ जरूरत ना होती तो चले जाते। इस दौरान आपकी ने चंद नमाजें पढ़ाई लेकिन नमाज के बाद ना बैठे। मैंने हजरत बरा अली अल्लाह से पूछा कि क्या कुछ मामला है। इस दौरान हजरत सीदना उस्मान गनी अली वो भी तशरीफ ले आए और हम सब मिलकर आप अलही की खिदमत में रवाना हुए। हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल कसीर सामने रखा और हजरत सीदना उस्मान लिया और हजरत मुरकाम अली उनसे फरमाया कि ये माल तुम ले लो क्योंकि तुम दोनों अहल मदीना में सबसे ज्यादा माल कसीर रखते हो। तुम दोनों ये माल आपस में तकसीम कर लो और जो बच जाए वो मुझे लुटा दो। हजरत सीदना उस्मान गनी अली ने जब हजरत सीदना उमर फारूक दिल्ली की बात सुनी तो घटनों के बल बैठ गए। हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया, ये माल उस वक्त अल्लाह के पास नहीं था जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा खाल भून कर खाते थे। मैंने अर्ज किया, बेशक ये माल तब भी अल्लाह के पास था जब हुजूर नबी करीम से काम हयात थे, और ये माल अगर हुजूर नबी करीम से इल्म के ज़माना में फ़तह के बाद हासिल होता तो हुजूर नबी करीम से काम ये ना करते जो तुम कर रहे हो। हजरत सीदना उमर फारूक अली ने पूछा, फिर हुजूर नबी करीम से काम किया करते। मैंने अर्ज किया कि हुजूर नबी करीम से कहो कि इस माल को खाते और दूसरों को खिलाते। मेरी बात सुनकर आप दलिया इस दर्द के साथ रोए कि उनकी पसलियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गईं। आप अलिफ ने रोते हुए फरमाया, मुझे पसंद है कि मैं मामला खिलाफत से सरासर छूट जाऊं और ना मुझे कुछ नफा हो ना खसारा। लिबास में जा बजा पैवनद होते थे। हजरत हुस्न बसरी अलैहि फरमाते हैं कि मैं बसरा की जामा मस्जिद में एक महफिल में मौजूद था। मैंने देखा कि कुछ लोग हुजूर नबी करीम से काम के सहाबा हजरत सीदना अबू बकर सिद्दीक और हजरत सीदना उमर फारूक भी अल्लाह के ज़हद का तज़किरा कर रहे थे, और वो उन चीज़ों का तज़किरा कर रहे थे जो अल्लाह ताला ने उन दोनों के सीने को इस्लाम के लिए खोला, और उन दोनों हजरत की हुस्न सीरत का बयान कर रहे थे। चुनांचे में उन लोगों की महफिल में बैठ गया। इस महफिल में हजरत इज़फ़ अला अल्लाह बिन कैस तमीमी भी थे। हजरत हुस्न बसरी बराई फरमाते हैं, हजरत अहनफ बिन कैस ने फरमाया कि हम लोगों को हजरत सीदना उमर फारूक भी अल्लाह ने एक मरका के लिए इराक की जानिब रवाना किया। अल्लाह ताला ने हमारे हाथों इराक और फारिस के मुतअद्दिद शहर फतह करवाए। हमने वहाँ से चांदी पाई और इससे अपने लिबास बनवाए। जब हम हजरत सीदना उमर फारूक या अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए तो इन्होंने हमें देखकर अपने मुंह फेर लिया। हमें ये बात गरम गुजरी तो हम
हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र अलीना की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे हज़रत सीदना उम्र फारूक अल्लाह की इस नाराज़गी का सबब दरियाफ्त किया। हज़रत अबद अल्लाह बिन उम्र अली चना ने फरमाया कि क्या तुमने हज़रत सीदना उम्र फारूक को ऐसा लिबास इस्तेमाल करते देखा जो हुजूर नबी करीम के आलम और हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह ना इस्तेमाल करते हूँ। चुनांचे हम घर वापस गए और वो लिबास तब्दील करके आए और जिस लिबास में हज़रत सीदना उम्र फारूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देखा करते थे ही लिबास में हम उनके पास गए। हज़रत सीदना उम्र फारूक अल्लाह ने हमें देखा तो खड़े हो गई ये और हमने हर एक से सलाम किया। हमने आप अल्लाह के सामने माल गनीमत पेश किया जो आप ने हम लोगों में बराबर तकसीम कर दिया। इस दौरान माल गनीमत में से छोहरे और घी का हलवा भी निकला। हज़रत सीदना उम्र फारूकी ने उनकी खुशबू सोम व सोनगी तो आप अली ने भी हमें मुखातब करते हुए फरमाया अल्लाह की कसम इसे मुहाजिरीन और अंसार की जमात तुम में से बेटा बाप से और भाई भाई से इस खाने पर लड़ेगा। फिर आप अल्लाह ने इस खाने को उन लोगों की औलादों के पास पहुंचा दिया जो हुजूर नबी करीम से काम की हयात मुबारका में शहीद हो चुके थे। इसके बाद हज़रत सीदना उम्र फारूक दिल्ली वापस हो लिए। सहाबा किराम मैनी अनीम की एक जमात ने उनके जाने के बाद फरमाया कि उस शख्स के जहद को और उसके अलही को देखो, उस शख्स ने हमारे नफूस को भी हकीर कर दिया है। अल्लाह ताला ने हमारे हाथों कैसर वाव कसरी के शहर फतह करवाए, मशरिक वाव मगरिब में अपने दीन की सरबलंदी के लिए हमें चना। और जब हम हज़रत सीदना उम्र फारूक अल्लाह को देखते हैं तो उनके लिबास पर जा बजा पैवनद होते हैं। अजज वाव इनकिसारी हज़रत क़तादा असली लला फरमाते हैं कि हज़रत सीदना उम्र फारूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अगर मैं चाहूँ तो मैं तुमसे अच्छा खाना खाऊं और तुमसे नरम कपड़े पहनूं, लेकिन मैं अपने तैबात को बाकी रखना चाहता हूँ और आखिरत में तबीबात का ख़्वाह हूँ। बरावी कहते हैं कि हज़रत सीदना उम्र फारूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम तशरीफ़ लाए तो आप वली अल्लाह के सामने ऐसा खाना पेश किया गया या जो इन्होंने ने पहले कभी कभी नहीं देखा था। आप ये ने दरियाफ्त फरमाया कि ये मेरे लिए है और ये मेरे लिए है, और जो फ़क़रा वाओ मसाकीन विसाल पा चुके हैं इन्होंने कभी जो की रोटी से भी अपना पेट न भरा उनके लिए जन्नत है। अनदरा रावी कहते हैं ये फरमाकर हज़रत सीदना उम्र फारूक याजारू क़तार रोने लगे और फरमाने लगे अगर हमारा हिस्सा इस मुता दुनिया से है और वो लोग जन्नत में हैं तो उनके और हमारे दरमियान फासिला ज़्यादा हो गया है। माल के खर्च का खौफ। हज़रत अबद अर्रहमान बिन वफ़ वली अल्लाह फरमाते हैं हज़रत सीदना उम्र फारूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बलवाया और जब मैं आप अल्लाह के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने अंदर से आप के रोने की आवाज़ सुनी। मैं परेशान हो गया कि शायद कुछ सानिहा पेश आ गया है। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने आप ही अल्लाह से रोने की वजह दरियाफ्त की तो आप अल्लाह मुझे लेकर एक कोठरी में दाखिल हो गए जिसके अंदर बड़े बड़े बोरे रखे हुए थे। हज़रत सीदना उम्र फारूक अल्लाह ने मुझे मुखातब करते हुए फरमाया आज और खिताब अल्लाह ताला के नज़दीक जलील हो गई। अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये माल मुझसे पहले दोनों हज़रत मोहम्मद ये और हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ को अता करता ताकि वो मेरे लिए उसके खर्च का कोई तरीका मुकर्रर करते। हज़रत अबद अर्रहमान बिन वफ़ अलैहि फरमाते हैं मैंने हज़रत सीदना उम्र फारूक अल्लाह से अर्ज़ किया आप ली हमारे पास बैठे हम सोचते हैं। हज़रत अबद अर्रहमान बिन वफ़ अल्लाह फरमाते हैं फिर हम लोगों ने बाहम मशवरा के लिए किया कि अम्हात अल-मुमिनीन के लिए 4-4 हज़ार दिरहम, मुहाजिरीन के लिए भी 4,000 दिरहम, अंसार के लिए 3-3 हज़ार दिरहम और बाकी सब के लिए 2-2 हज़ार दिरहम तजवीज़ किए गए। इस तरह हमने वो सारा माल तकसीम कर दिया। 2 चीज़ें खाने में जुमा करने की ममानत हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र भी ना फरमाते हैं। वालिद बुजुर्गोर हज़रत सीदना उम्र फारूक उनके पास आए और मैं उस वक्त दस्तरखान पर बैठा हुआ था। मैंने आपको सदर मजलिस में जगह दी। आप अल्लाह ने खाने की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बसम अल्लाह शरीफ पढ़ी और लुक़मा उठाया। फिर मुझे फरमाया मुझे चिकनाई वाले खाने का मज़ा महसूस होता है लेकिन वो चिकनाई गोश्त की नहीं। मैंने अर्ज़ किया मैं बाजार मोटे गोश्त की तलाश में गया था ताकि खरीद लाऊं। मैंने मोटा गोश्त गरम देखा तो 1 दिरहम का बौदा गोश्त खरीद लिया और 1 दिरहम का घी। आप दलिया ने फरमाया कि हुजूर नबी करीम से है के पास जब 2 चीज़ें जुमा हो जाती तो वो एक को खाया करते और दूसरी को सदका कर देते।
मैंने अर्ज किया कि आप ही और आज खा ले जाए, आइंदा में कभी दो चीजें जुमा नहीं करूंगा। आप भी। अल्लाह ने फरमाया कि मैं ये नहीं खा सकता। ग़िज़ा इंतहाई सादा थी। हजरत उक़बा बिन फ़रक़त सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं, मैं हजरत सीदना उमर फ़ारूक सल्लल्लाहु अलैहि के पास हलवे के कई टोकरे लेकर आया। आप अलैहि ने दरियाफ्त किया कि इसमें क्या है। मैंने कहा कि खाना है जो मैं आप लिया अल्लाह के लिए लाया हूँ कि आप लिया स्वभावतः ही लोगों के कामों में लग जाते हैं। मैंने बेहतर जाना कि जब आप दलील अल्लाह लोगों से फारिग हूँ तो इसमें से थोड़ा सा खा लिया करें ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि को तक़वियत पहुँचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि की सेहत बरकरार रहे। हज़रत उक़बा बिन फ़रक़त सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि हज़रत सीदना उमर फ़ारूक अल्लाह ने मेरी बात सुनकर फरमाया, ए उक़बा, मिली, मैं तुझे कसम देता हूँ कि क्या तूने हर मुसलमान को ऐसा करा दिया है। हज़रत उक़बा बिन फ़रक़त अली ये फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, अमीर अल मोमिनीन, अगर मैं कैस के तमाम माल को भी खर्च कर दूँ तो तब भी मुझ में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं तमाम मुसलमानों को ऐसा कर भेजो लिख सकूं। हजरत सीदना उमर फ़ारूक सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि फिर मुझे भी इसकी कोई हाजत नहीं। इसके बाद आप अलैहि ने एक प्याला टरीद मंगवाया जिसमें मोटी रोटियां और सख्त गोश्त था। आप भी ये इसको खाने लगे और मुझे भी खाने की दावत दी। मैं सफ़ेद बोटी की तरफ माइल हवा और गुमान किया कि ये चर्बी होगी, बस वो पट्टा था और बोटियों का ये हाल था कि मैं इन्हें चबाता मगर निगल ना सकता था। हजरत सीदना उमर फ़ारूक भी। अल्लाह की नज़र मुझसे चौकती तो मैं इस बोटी को प्याला के बीच में सरका देता। खाने के बाद आप पिलाने नबीज़ का प्याला मंगवाया जो सरका होते हुए बच गया था। आप दलिया ने मुझसे फरमाया कि इसे पी लो। मैंने इस प्याले को मुंह से लगाया मगर पी ना सका। हजरत सीदना उमर फ़ारूक मिली है, इस प्याले को पी गए और फिर मुझसे फरमाया, ए उक़बा, ये सुनो, मैं रोज़ाना एक ऊँट ज़बा करता हूँ, लेकिन इसकी चर्बी और पट्टे का गोश्त उन लोगों के लिए होता है जो अतराफ से मुसलमान आते हैं, और इसकी गर्दन का गोश्त उमर अली के घर वालों के लिए होता है, जबकि उमर खुद ये मोटा गोश्त खाता है और ये सख्त नीज पीता है जो कि हमारे पेटों में पहुंचकर मिस्र रस्मों होता है। लिबास की सादगी। हजरत क़तादा अली अल्लाह फरमाते हैं कि हजरत सीदना उमर फ़ारूक लाइला अपने दूर खिलाफत में उनका जिबा पहनते थे और इस जिबा पर जाबजा चढ़े के पैवनद होते थे। आप उसी हालत में बाजारों में भी घूमते और आप सल्लल्लाहु अलैहि के कंधे पर दौरा होता जिससे आप वली अल्लाह लोगों को अदब देते। हजरत रूह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि जब हजरत सीदना उमर फ़ारूक सल्लल्लाहु अलैहि तशरीफ लाए और आप एलिया के साथ मुहाजिरीन व अंसार की एक जमात थी, आप ली ने इस कफ को अपना करता दिया जिसमें जाबजा खदर के पैवनद लगे हुए थे और जो पीछे से इस वजह से फट चुका था कि आप लैला वाव सवारी पर एक लंबे सफर में बैठे रहे थे, और आप अलैहि ने इस कफ से फरमाया कि इसमें पैवनद लगा दो। इस तकाफत ने आप ये का करता लिया और इस जैसा एक करता ही कर आप अली की खिदमत में हाजिर हो गया। आप भी। अल्लाह ने पूछा कि ये क्या है। इस कफ ने कहा, ये आप ही अल्लाह का करता है जिसमें ने पैवनद लगा दिया, और ये करता मेरे पास से आप दलील के पहने के लिए है। आप अली ने दोनों करतों को देखा और फिर अपने ही करते को दोबारा पहनते हुए फरमाया कि उसका कपड़ा पसीना जज्ब करने के लिए अच्छा है, दुनियावी चीजों से लुत्फानंदोज नहीं होते थे। हजरत जाबिर बिन अबद अल्लाह अली अल्लाह फरमाते हैं, मेरी हजरत सीदना उमर फ़ारूक अली शी की मुलाकात हुई कि मेरे हाथ में एक दिरहम का गोश्त था। आप अलैहि ने मुझसे दरियाफ्त किया, ये किया है। मैंने अर्ज किया कि घर वालों की फरमाइश पर एक दिरहम का गोश्त। हजरत सीदना उमर फ़ारूक दी अल्लाह ने फरमाया, दो तुम में से कोई एक इस बात का इरादा क्यों नहीं करता कि अपने पीठ को अपने पड़ोसी और अपने चेहरे भाइयों के लिए भूखा रखे। क्या तुमने अल्लाह ताला का ये फरमान नहीं सुना कि तुम अपनी लज़ात की चीज़ें दुनियावी जिंदगी में हासिल कर चुके हो और उनको खूब बरत चुके हो। हजरत जाबिर बिन अबद अल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हजरत सीदना उमर फ़ारूक दियल की बात सुनकर मेरे दिल में ख्याल पैदा हवा कि काश ये एक दिरहम मुझसे गिर गया होता, या फिर मेरी मुलाकात हजरत सीदना उमर फ़ारूक भी अल्लाह से ना हुई होती। पाक दामन औरत की मानिंद इसका निकाह करो। हजरत शुएबी से मरुए है, फरमाते हैं कि एक शख्स हजरत सीदना उमर फ़ारूक सल्लल्लाहु अलैहि की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मेरी एक बेटी थी जिसे मैंने जमाना जाहिलियत में जिंदा दरगोर कर दिया था, मगर मरने से पहले उसे कब्र से निकाल लाया और उसने हमारे साथ जमाना इस्लामी पा लिया और अब इस्लाम ले आई। जब वो इस्लाम ले आई तो उसने एक ऐसे गुनाह का इर्तिकाब किया
जिस बहता से इस पर हुदूद अल्लाह आयद होती थी। इस लड़की ने छुरी उठाई ताकि अपने आप को ज़बह करता है। हजरत शमी इला अल्लाह फरमाते हैं, उस शख्स ने कहा कि हमने उसको पकड़ लिया और वो अपनी गर्दन की बाज रगीन तराश भी चुकी थी। हम लोगों ने इसका इलाज किया यहाँ तक कि वो अच्छी हो गई। इसके बाद फिर वो तो ब की तरफ मुतवज्जह हुई और बड़ी बढ़िया तौबा की। जब कौम में से उसका रिश्ता आया तो मैंने उनको इस मुस्लिम की वो हालत जैसन पर वो पहले थी बता दी है। ये सुनकर हजरत सीदना उमर फारूक अली अन्हा ने फरमाया कि जिस चीज़ की अल्लाह ताला ने पर्दा पोशी की हो तो इसके जाहिर करने का कसद करता है। खुदा की कसम, अगर तूने किसी शख्स से भी इस हालत का इजहार किया तो मैं तुझे वो सज़ा दूंगा जो तमाम शहर वालों के लिए बाइस अबरत हो जाए। जाओ इसका निकाह कर। जिस तरह का एक पाक दामन मुसलमान औरत का निकाह किया जाता है जिसकी अल्लाह ताला पर्दा पोशी करे, इसे जाहिर ना करो। हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई। उसने अर्ज किया कि अमीर अल मोमिनीन, मैंने एक बच्चा पाया। इस पर एक मिस्री सफ़ेद कपड़ा था जिसमें 100 दीनार थे। मैंने इस बच्चा को लिया और इसके लिए एक दूध पिलाने वाली उजरत पर लीना। अब 4 औरतें मेरे पास आई हैं और इसको प्यार करती हैं कि ये उनका बच्चा है। मैं ये नहीं जान पा रही कि इस बच्चे की माँ कौन है। हजरत सीदना उमर फारूक अली ने इस औरत से कहा कि जब वो आए तो तुम मुझे बल्ला लेना। चुनांचे इस औरत ने आप इला अल्लाह को बुलाया। आप दलिया ने इन औरतों में से एक औरत से पूछा कि तुम में से इस बच्चे की माँ कौन है। इस औरत ने कहा, अल्लाह की कसम ए उमर, तुमने कोई बेहतर काम नहीं किया जिस औरत की अल्लाह ताला ने पर्दा पोशी फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो जाहिर कर रहे हैं। हजरत सीदना उमर फारूक अली ने इस औरत जिसके पास बच्चा था इससे फरमाया, जब ये औरतें तेरे पास आया करें तो तुम उनसे पूछ समझ ना किया करो, बल्कि उनको बच्चे के साथ एहसान करते दो यहाँ तक कि ये वापस चली चलाएं। मेहमान की इज्जत अफजाई। हजरत अनस बिन मालिक भी अल्लाह से मरुए है। फरमाते हैं कि हजरत सलमान फारसी अली हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। हजरत सीदना उमर फारूक वली अल्लाह उस वक्त तकिया के साथ टेक लगाए बैठे थे। आप ही अल्लाह ने हजरत सलमान फारसी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो अपना तकिया उनके आगे कर दिया। हजरत सलमान फारसी ली ने आप लिया अल्लाह का ये फेल देखकर फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके रसूल से तुमने सच कहा है। हजरत सीदना उमर फारूक अल्लाह ने आप लिया है इस बारे में दरियाफ्त किया तो आप दलिया ने फरमाया कि मैं हुजूर नबी करीम से अवाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो हुजूर नबी करीम से तकिया से टेक लगाए बैठे थे। आप या अल्लाह ने वो तकिया मेरे आगे रख दिया और मुझसे फरमाया, ए सलमान, या कोई मुसलमान ऐसा नहीं जिसके पास इसका मुसलमान भाई है और इसकी इज्जत अफजाई करे, यहाँ तक इसके लिए तकिया डाले मगर अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत कर दे। हजरत खुलाफी सीना का एहतराम। हजरत अबी यजीद इला अल्लाह फरमाते हैं कि हजरत सीदना उमर फारूक बनिए इस औरत से मिले जिसका नाम ख्वाला नून है। ये लोगों के साथ चली जा रही थीं। इन्होंने आप दिल्ली के काफिले को ठहराया। हजरत सीदना उमर फारूक दी अल्लाह ने उनकी बात सुनी और उनकी जो हाजत थी इसे पूरा किया। उस दौर इन आप अलैहि के काफिले में से एक शख्स ने कहा, अमीर अल मोमिनीन, आपकी एक बूढ़ी औरत के रोकने पर रुक गए। हजरत सीदना उमर फारूक अली ने फरमाया, मुझे तुझ पर अफसोस है, किया तो जानता है कि ये औरत कौन थी। इस आदमी ने कहा कि मैं नहीं जानता। आप दही अल्लाह ने फरमाया कि शानी ये खुला बिन्त नतलबा पहली ही थी। अल्लाह ने उनकी शिकायत 7वें आरा आसमान से भी ऊपर सुनी थी। अल्लाह की कसम, अगर ये मेरे पास तमाम रात भी खड़ी रहती हैं उनकी बात सुनता है। हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह की तारीफ फरमाना। हजरत रूला इलाह फरमाते हैं कि किसी शख्स ने हजरत सीदना उमर फारूक भी अल्लाह के सामने हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा या को बुरा भला कहा। आप अल्लाह ने उस शख्स का हाथ पकड़ा और इसे लेकर हुजूर नबी करीम से काम के रोज़ा पर चले गए और उस शख्स से फरमाया, किया तो जानता है कि रोज़ा किसका है। उस शख्स ने कहा कि ये रोज़ा हुजूर नबी करीम से काम का है। आप दलिया ने फरमाया, तो जिस शख्स के बारे में बुरा भला कहता है वो उनके ख़ानदान का फ़र्द है, उनका चाज़ाद भाई है और उनका दामाद है। अगर तो हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा अली का तज़किरा अच्छे अल्फाज में नहीं करता तो हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह के साथ साथ उनको भी तकलीफ पहुंचाता है। काफिले की हिफाजत फरमाना। एक मर्तबा एक काफिले ने मदीना मुनव्वरा से बाहर पड़ाव डाला।
हजरत सीदना अमर फारूक अली अल्लाह को इसकी खबर हुई तो रात के वक्त आप दिल अल्लाह इस काफिले की हिफाजत के लिए चले गए ताकि उनका कोई सामान चोरी ना हो जाए। रास्ते में आप लिया अल्लाह की मुलाकात हजरत अबद अर्रहमान बिन वूफ वली अल्लाह से हुई। इन्होंने आप ही से दरियाफ्त किया कि इतनी रात गए आप अली और कहाँ जा रहे हैं। तो आप अल्लाह ने उनसे फरमाया कि फलां काफिले ने मदीना मुनव्वरा से बाहर पड़ाव डाला है, मैं उसकी हिफाजत के लिए बजा रहा हूँ। हजरत अबद अर्रहमान बिन वूफ अली अल्लाह भी आप सल्लल्लाहु के हमराह हो लिए। फिर दोनों हजरात रात भर काफिले की हिफाजत करते रहे, यहाँ तक कि फजर का वक्त हो गया। आप दलिया ने काफिले वालों को पुकारा कि उठो, नमाज फजर का वक्त हो गया। इसके बाद आप ही अल्लाह हजरत अबद अर्रहमान बिन वूफ अली अल्लाह के हमराह वापस मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए। मुनाफिक का सर कलम कर दिया। एक मर्तबा एक मुनाफिक हुजूर नबी करीम से काम के पास किसी फैसले के लिए हाजिर हुआ। आपसे तुमने फैसला इसके खिलाफ सुना दिया। वो मुनाफिक हजरत सीदना उमर फारूक भी अल्लाह के पास गया और आप सल्लल्लाहु से फैसला करने को कहा। आप सल्लल्लाहु ने इससे पूछा कि किया तो हुजूर नबी करीम से काम के पास फैसले के लिए नहीं गया। इसने कहा कि हुजूर नबी करीम से तुमने फैसला मेरे खिलाफ बनाया है, इसलिए मैं आप दुनिया के पास फैसले के लिए हाजिर हवा हूँ। हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु ने इस मुनाफिक की ये बात सुनी तो तलवार निकाल कर इसका सर कलम कर दिया और फरमाया कि तूने हुजूर नबी करीम से काम का फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया, तेरा फैसला मेरी तलवार ने कर दिया। अवाम का खादिम एक मर्तबा हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु मामूल के मुताबिक मदीना मुनव्वरा की गलियों में गशत फरमा रहे थे कि आप अलदूर इन गशत शहर से बाहर निकल गए। शहर से बाहर आप अल्लाह ने एक खैमा लगा देखा जिसके दरवाजे पर एक अजनबी शख्स निहायत परेशानी के आलम में बैठा हुआ था। आप दिल अल्लाह ने उस शख्स के पास जाकर उस शख्स की परेशानी दरियाफ्त की तो उसने आप पली अल्लाह से बेरखी बरतते हो, मियाँ जाओ तुम अपना काम करो, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले। कहा कि इस दौरान हजरत सैयदना उमर फारूकी ने किसी औरत के करपने की आवाज सुनी। आप ही अल्लाह ने इस शख्स से कहा कि तुम मुझे बताओ तो सही कि तुम्हारे साथ क्या मुआमला है। उस शख्स ने कहा कि मेरी बीवी हामिला है और उस वक्त इसके पास कोई औरत मौजूद नहीं और न ही मेरे पास कुछ सामान मौजूद है। हजरत सीदना उमर फारूक अली ने उस शख्स की बात सुनकर घर तशरीफ ले गए और अपनी ज़ुजा हजरत उम कुलसूम अना बिन्त हजरत सैयदना अली अली अल्लाह को हमराह लिया और साथ ही खाने पीने का सामान और दूसरा कुछ सामान लिया और इस शख्स के पास पहुंचे। आप ली है कि ज़ुजा खैमे के अंदर चली गईं और आप लिया है बाहर उस शख्स के पास मौजूद रहे। जब बच्चे की विलादत हो गई तो आप बिल्ली ने इस शख्स से फरमाया कि तुम परेशान मत होना, सुबह मेरे पास आना, मैं तुम्हारी माली मदद भी करूंगा और तुम्हारे बच्चे का वजीफा भी मुकर्रर करूंगा। उस शख्स ने पूछा कि आप पहली ये कौन हैं? हजरत सीदना उमर फारूकी ने फरमाया कि मैं अवाम का खादिम उमर ये हूँ। उस शख्स ने जवाब लिया का नाम सुना तो उसे मालूम हुआ कि आप लिया तो अमीर अल-मुमिनीन हैं। वो परेशान हुआ और माजरत करने लगा तो आप अली अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अवाम का तकादिम हूँ, ये तहरीर मेरे साथ कब्र में रख देना। एक मर्तबा हजरत सीदना उमर फारूक दी अल की दौरान गशत एक बोली और नादार औरत से मुलाकात हुई। आप भी अल्लाह ने इससे खैरियत दरियाफ्त की तो उसने अमीर अल-मुमिनीन को कोसना शुरू कर दिया। वो बोली औरत ये ना जानती थी कि आप अल्लाह ही अमीर अल-मुमिनीन हैं। हजरत सीदना उमर फारूक दी अल्लाह ने इस औरत से अमीर अल-मुमिनीन को कोसने की वजह दरियाफ्त की तो उसने कहा कि जब से वो अमीर अल-मुमिनीन बने हैं इन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। आप ये ने इस बोली औरत से माजरत की और उसकी भरपूर माली इमदाद की। जब इस बोली औरत को पता चला कि वो अमीर अल-मुमिनीन हजरत सीदना उमर फारूक लामल्लाह से बात कर रही है तो वो अपने रवैया पर नादिम हुई। हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु ने इस बोली औरत से फरमाया कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती मेरी थी जो मैंने तुम पर तवज्जो न की। इसके बाद हजरत सीदना उमर फारूक अली ने इस औरत से एक तहरीर लिखवाई कि अमीर अल-मुमिनीन हजरत सीदना उमर फारूक अली ने मेरे हुकूक की अदायगी में जो कोताही की थी मैंने इस पर इन्हें मुआफ किया। आप भी अल्लाह ने ये तहरीर अपने बेटे को दी और उससे फरमाया कि जब मैं विसाल पा जाऊं तो ये तहरीर मेरे साथ कब्र में रख देना।
कहता साली में लोगों की माली व अखलाकी मुआवनत फरमाना। हजरत असलम अली अल्लाह से मरुए है, फरमाते हैं कि रबात के साल लोग कहता साली की वजह से हलाक हो गए। हजरत सीदना उमर फारूक अली ने कुछ लोगों को मुकर्रर किया जवान की निगहदाश्त करें और उन पर खाना और तरकारी तकसीम करें। चुनांचे इस काम के लिए यजीद बिन अजबत अल-नमर, मसूद बिन मुहज़मा, अब्दुल रहमान बिन अबद अल-कारी, अब्दुल्लाह बिन उक़बा बिन मसूद माल मुकर्रर किए गए। हजरत असलम भी फरमाते हैं जब शाम होती तो ये लोग हजरत सीदना उमर फारूक भी अल्लाह के पास जुमा होते और आप एलिया को हर चीज़ की इत्तला देते जिस चीज़ की ज़रूरत होती। इन हजरात में से हर एक मदीना मुनव्वरा की हर सिमत में मुकर्रर था और आने वाले अराब सानिया के सिरे से राइज तक, बनी हारसा तक और बनी अबद अलाशहल तक और बकी तक और बनी करीजा तक पड़े हुए थे और इनकी बाज जमातें बनी सलमा के अतराफ तक थीं और ये लोग चारों तरफ मदीना के पड़े रहते थे। हजरत असलम अलैहि फरमाते हैं मैंने एक रात हजरत सीदना उमर फारूक को फरमाते हुए सुना जबकि लोग उनके पास इशा का खाना खा रहे थे कि जिन लोगों ने हमारे पास खाना खाया उनका शुमार करो। चुनांचे अगली रात उनका शुमार किया गया तो ये 7,000 नफर थे और आप भी अल्लाह ने फरमाया वो खानदान वाले लोग जो हमारे पास नहीं आए और मरीज और बचे उनको भी शुमार करो। हजरत असलम अलैहि फरमाते हैं उनका शुमार किया गया तो उनकी तादाद 40,000 थी। फिर कुछ दिनों तक लोगों की तादाद में मजीद इजाफा होता चला गया। हजरत सीदना उमर फारूक अल्लाह ने आने वालों के लिए हुक्म दिया कि उनकी देखभाल भी उसी तरीके से की जाए जिस तरह पहले वालों की हो रही है। फिर अल्लाह ताला के फजल से बारिश हुई और आप अली अल्लाह ने लोगों को वापस जाने का हुक्म दिया और वो लोग अपने अपने इलाकों को रवाना हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापसी के लिए ज़ाद राह और दीगर सामान दिया। हजरत असलम अलैहि फरमाते हैं कि हजरत सीदना उमर फारूक अहलिया ने जिन लोगों को खिदमत के लिए मुकर्रर किया था वो लोग सुबह फजर के बाद हांडियां चढ़ा देते जिसमें दलिया पकता जो मरीजों को खिलाया जाता और हरीरा पकाया जाता और आप बिल्ली या रोगन जैतून के मुतालिक हुक्म देते जो बड़ी हांडीव में आग पर रखकर जोश देते और जब इसकी गर्मी और हरारत ख़त्म हो जाती तो फिर रोटी चोरी जाती। फिर इस तेल से इसमें सालन मिलाया जाता होजा इस तेल से अरब गरमाई हासिल करते थे। आप भी अल्लाह ने इस तमाम अरसा में अपने घर वालों और खुद के लिए एक लुकमा भी ना चखा और बस उसी पर इक्तिफा किया जो लोगों के साथ खा लेते, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उन लोगों को नई जिंदगी दी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अली अलमा की बेटी हजरत हुस्न अली अल्लाह से मरुए है, फरमाते हैं कि हजरत सीदना उमर फारूक ने एक बच्ची को देखा जो बहुत ही नाजुक थी और निहायत दबली पतली थी। आप ही है ने दरियाफ्त फरमाया ये बच्ची किसकी है? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अली अना ने अर्ज किया ये भी आप ही उनकी ही बेटी है। हजरत सीदना उमर फारूक देहली ने दरियाफ्त फरमाया ये मेरी कौन सी बेटी है? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर भी जिनने अर्ज किया ये मेरी बेटी है। आप लैला ने दरियाफ्त किया इनकी ये हालत कैसी है? हजरत अबद अल्लाह बिन उमर बना ने अर्ज किया कि आप अली अल्लाह के आमिल इस पर खर्च नहीं करते। आप दलिया ने फरमाया हाँ खुदा की कसम यही बात है, तुझे तेरा बच्चा किसी कदर प्यारा है तो अपनी औलाद पर खुद वसत कर खौफ खदान दे। हजरत इस्माइल बिन मोहम्मद बिन साद बिन अबी वकास भी सनजना से मरुए है कि बहरीन से हजरत सीदना उमर फारूक अली अल्लाह की खिदमत में अबीर और मशक आया तो हजरत सैयदना उमर फारूक या अल्लाह ने फरमाया खुदा की कसम मैं पसंद करता हूँ कि मैं कोई ऐसी औरत पाता जो अच्छा तोलती और मेरे लिए इस खुशबू को तोलती, यहाँ तब कि मैं इसने मुसलमानों के दरमियान तकसीम फरमा देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि की जुजा हजरत आतका बिन्त ज़ैद नहीं जाने कहा कि मैं अच्छा तोलती हूँ, आप ये मुझे दे जाए मैं उसे तोल दूँ। आप ही ये ने फरमाया नहीं, मुझे डर है कि तो उसे ले और इस तरह करे। फिर आप ही ने अपनी उंगलियां अपनी कानों के बालों के पास लगाएं और उसके जरिया अपनी गर्दन पर हाथ फेरे, पसंद तुझे मुसलमानों से कुछ ज्यादा मिल जाए, लोगों के माबैन अदावत के खौफ से आंसू बहाना। हजरत अबूस्तान मिली उनसे मरुए है, फरमाते हैं वो हजरत सीदना उमर फारूक के पास आए और आप दलील अल्लाह के पास मुहाजिरीन अवलीन की एक जमात तशरीफ फरमा थी। आपकी ने एक शख्स को भेजकर एक सक़त तलब किया जो कि एक बर्तन था और इराक़ी किला से लाया गया था, इसमें एक अंगूठी थी। आप दिल्ली के पास मौजूद एक बच्चे ने इस अंगूठी को मुंह में डाल लिया। आप दलिया ने इस बच्चे के मुंह से वह अंगूठी निकाली और इसके बाद
रोना शुरू कर दिया। मुहाजिरीन ने आप वली अल्लाह से इस रोने की वजह दरियाफ्त की और कहा, अल्लाह ताला ने आप दरिया को दुश्मनों पर गालिब किया और आप लिया है के जरिए दीन इस्लाम को तक़वियत बख्शी। आप दिल अल्लाह ने फरमाया, मैंने हुजूर नबी करीम से हमसे सुना है कि जब किसी कौम पर दुनिया फतह की जाती है तो अल्लाह ताला क़यामत तक उनमें अदावत और बख्श डाल देता है और मैं इस डर से रोता हूँ काश में एक तनका होता। हजरत सीदना उमर फारूक अली के क़ल्ब में खौफ खदांदे इस कदर था कि आप अल्लाह फरमाते थे, अगर निदा आए के एक शख्स के सिवा तमाम लोग जन्नत में जाएंगे तो मुझे डर है कि कहीं वो बदकिस्मत शख्स में ही ना हूँ। एक मर्तबा रास्ता में से तनका उठाया और कहने लगा कि काश में भी एक तनका होता और मुझे मेरी माँ ने पैदा ही ना किया होता। जवानी से नफा उठाएं और बुढ़ापे का ख्याल ना रखें। हजरत सीदना उमर फारूक भी है का गुजर एक ज़ईफ शख्स के पास से हवा जो भीख मांग रहा था। आप सल्लल्लाहु ने इससे भीख मांगने की वजह दरियाफ्त की तो उसने कहा कि मुझ पर जजिया लगाया गया, हालांकि मैं मफलस हूँ। आप ही अल्लाह उसे अपने घर ले गए और कुछ नकदी अता की और भी तलमाल के नगर उनको एक रकाह लिखा कि इस ज़मीन के लिए भी कुछ वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए। ये इंसाफ नहीं है कि हम जवानी से नफ़ा उठाएं और बुढ़ापे में उनका ख्याल न रखें। आदमी का चचा और उसका बाप एक ही दरख्त की दो शाखें हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद मिली इंजना से मरुए है, फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम से काम ने हजरत सीदना उमर फारूक अली उनको सदक़ात की वसूली के लिए भेजा। आप लाम ये सदक़ात की वसूली के लिए रवाना हुए तो पहले शख्स हजरत सीदना अब्बास भी इला है। हजरत सीदना उमर फारूक अली ने इनसे कहा, अब्बू अल-फज़ल अपनी ज़कात लाइए। हजरत सीदना अब्बास इला अल्लाह ने कहा कि अगर मेरा और तुम्हारा मुआमला होता तो मैं तुम्हें बता देता। हजरत सीदना उमर फारूक अली ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह और उसके रसूल उनके नज़दीक आपका मर्तबा बुलंद ना होता तो मैं इस पर अमल करता जिसका हुक्म मुझे दिया गया है। फिर हजरत सीदना उमर फारूक दिया हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा ही के पास गए और सारा मा तेरा इन्हें बयान किया। हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली ने हजरत सीदना उमर फारूक एलिया का हाथ पकड़ा और हुजूर नबी करीम से आलम के पास ले गए। आप ही मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह से कि आपसे तुमने मुझे सदक़ात की वसूली के लिए भेजा, पस मुझे पहले शख्स जो मिले वो आपसे कलाम के चचा हजरत सीदना अब्बास वली अल्लाह थे। इन्होंने मुझसे ऐसी बात कही। हुजूर नबी करीम से हमने फरमाया, ए उमर, तुम जानते नहीं कि आदमी का चा और इसका बाप एक ही दरख्त की दो शाखें हैं, अब तुम उनसे कुछ न कहना। इन्होंने अपनी 2 साल की ज़कात जुमा करवा रखी है। एक नौजवान की गिरिया वजारी ने जिगर जला दिया। हजरत सीदना उमर फारूक लाइला एक मर्तबा हुजूर नबी करीम से उनकी खिदमत में रोते हुए हाजिर हुए। हुजूर नबी करीम से कलाम ने दरियाफ्त फरमाया, ए उमर, क्यों रोते हो? हजरत सीदना उमर फारूक दी अल्लाह ने अर्ज किया, दरवाजे पर खड़े हुए नौजवान की गिरिया वजारी ने मेरा जिगर जला दिया। हुजूर नबी करीम से तुमने फरमाया इसे अंदर लाओ। जब जवान हाजिर खिदमत हुआ तो हुजूर नबी करीम से हमने पूछा, ए जवान, तुम किस लिए रो रहे हो? इस जवान ने अर्ज किया, मैं अपने गुनाहों की कसरत और रब ज़ोल जलाल की नाराज़गी के खौफ से रो रहा हूँ। हुजूर नबी करीम से हमने पूछा, क्या तूने शरक किया है? इस नौजवान ने कहा, नहीं। हुजूर नबी करीम ने पूछा, क्या तूने किसी को नाहक कत्ल किया है? इस नौजवान ने अर्ज किया, नहीं। हुजूर नबी करीम से हमने इरशाद फरमाया, अगर तेरे गुनाह 7 आसमानों, ज़मीनों और पहाड़ों के बराबर हों तब भी अल्लाह ताली अपनी रहमत से तुझे बख्श देगा। वो नौजवान बोला, या रसूल अल्लाह से मेरा गुनाह उनसे भी बड़ा है। हुजूर नबी करीम से तुमने फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है कुर्सी। इस नौजवान ने अर्ज की, मेरा गुनाह? हुजूर नबी करीम से हमने फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या रशिला। इस नौजवान ने अर्ज किया, मेरा गुनाह? हुजूर नबी करीम ने कलाम ने फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा रब ज़ोल जलाल। इस नौजवान ने अर्ज किया, रब ज़ोल जलाल बहुत अजीम है। हुजूर नबी करीम से तुमने फरमाया, बल्ला शुबा जुर्म अजीम को रब अजीम ही मुआफ फरमाता है। फिर हुजूर नबी करीम से हमने फरमाया, तुम मुझे अपना गुनाह बताओ। इस नौजवान ने अर्ज किया, मुझे आपसे काम के सामने अर्ज करते हुए शर्म आती है। हुजूर नबी करीम से तुमने फरमाया, कोई बात नहीं, तुम बताओ। इस नौजवान ने अर्ज किया, मैं 7 साल से कफन चोरी कर रहा हूँ। अंसार की एक लड़की फौत हो गई तो मैं इसका कफन चराने जा पहुंचा। मैंने कब्र खोद कर कफन ले लिया और चल पड़ा। कुछ ही दूर गया था, मुझ पर
शैतान गालिब आ गया और मैं उल्टे कदम वापस पहुंचा और लड़की से बदकारी की। मैं गुनाह करके अभी चंद ही कदम चला था कि लड़की खड़ी हो गई और कहने लगी, है जो उन खुदा तुझे गारत करे, तुझे इस निगहबान का खौफ नहीं आया जो हर मजलूम को जालिम से इसका हक दिलाता है। तूने मुझे मर्दों की जमात से बरहना कर दिया और दरबार खदानदी में नापाक कर दिया। हुजूर नबी करीम से तुमने जब ये सुना तो फरमाया, दूर हो जा ए बदबख्त, तो नार जहन्नम का मुस्तहिक है। वो नौजवान वहां से रोता हुआ और अल्लाह ताला से इस्तगफार करता हुआ निकल गया। जब इसे उसी हालत में 40 दिन गुजर गए तो इसने आसमान की तरफ निगाह की और कहा, ए मोहम्मद ओ आदम व इब्राहिम अस्सलाम के रब, अगर तूने मेरे गुनाह को बख्श दिया है तो हुजूर नबी करीम से है और आपसे कम के सहाबा किराम भी अल्लाह को मतलब फरमा दे, वाओ गिरना आसमान से आग भेज कर मुझे जला दे और जहन्नम के अजाब से बचा ले। उस वक्त हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु के नाम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, आप लेके काम का रब आपसे कलाम को सलाम कहता है और पूछता है कि मखलूक को तुमने पैदा किया है। हुजूर नबी करीम से तुमने फरमाया, नहीं बल्कि मुझे और तमाम मखलूक को अल्लाह ताला ने पैदा किया है और उसी ने रिज़्क दिया है। तब हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने इस नौजवान की तौबा कबूल कर ली है। बस हुजूर नबी करीम से हमने इस जवान को बल्ला कर उसे तो ये कि कबूलियत की खुशखबरी सुनाई, कंबल का लिबास पहना दिया। हजरत इयाज अली अल्लाह के बारे में हजरत सीदना उमर फारूक अली को मालूम हुआ कि वो बारीक लिबास इस्तेमाल करते हैं, हालांकि आप ही अल्लाह ने सख्ती से मना कर रखा था कि कोई शख्स बारीक लिबास इस्तेमाल ना करे। आप दिल अल्लाह ने हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिमा लिया को तहकीकात के लिए मिस्र भेजा और जब ये बात साबित हो गई कि हजरत इयाज दलील अल्लाह बारीक लिबास इस्तेमाल करते हैं तो आप दिल अल्लाह ने इन्हें कंबल का लिबास पहना दिया। ए अब्बू हसन ली अल्लाह, तुम मुझे यूं मलामत ना करो। हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह से मरुए है, फरमाते हैं, मैंने एक सुबह हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु अलैहि को देखा, एक ऊंट पर सवार चले जा रहे हैं। मैंने पूछा, अमीर अल मोमिनीन कहाँ जा रहे हैं? हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, सदका के ऊँटों में से एक ऊँट गुम हो गया है, इसे तलाश कर रहा हूँ। हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह फरमाते हैं, मैंने कहा, आप दलिया ने बाद में आने वाले खुलफा को मुश्किल में डाल दिया है। जरत सीदना उमर फारूक ला इलाह ने जवाब में कहा, ए अब्बू अल हसन ली, मुझे मलामत ना करो, रब ज़ौल जलाल की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु के काम को नबी बरहक बना कर भेजा, अगर दरियाए फरात के किनारे एक साला भीड़ का बच्चा भी मर जाए तो क़यामत के दिन इसके बारे में मुझसे मुवाखज़ा होगा, क्योंकि इस अमीर की कोई इज्जत नहीं जिसने मुसलमानों को हलाक कर दिया और न ही इस बदबख्त का कोई मकाम है जिसने मुसलमानों को खौफजदा किया। अल्लाह इस वक्त तक जलील नहीं करता जब तक बुराई हद से ना गुजरे। हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु अलैहि की खिदमत में एक शख्स को पेश किया गया जो चोर था। आप ही अल्लाह ने तहकीकात के बाद उस शख्स के हाथ काटने का हुक्म जारी कर दिया। उस शख्स ने अर्ज किया, मैंने पहली मर्तबा चोरी की है, आप या अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, आइंदा मैं चोरी नहीं करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि तुम गलत कहते हो, तुमने इससे पहले भी कई बार चोरी की है। उस शख्स ने इनकार कर दिया। आप अलैहि ने दोबारा अपनी बात दोहराई तो उस शख्स ने इकरार कर लिया कि वो इससे कबल भी कई मर्तबा चोरी कर चुका है। फिर इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि से दरियाफ्त किया कि मेरे सिवा इन चोरियों को कोई नहीं जानता, आप दलिया को इसका इल्म कैसे हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस वक्त के वक्त तक किसी शख्स को जलील नहीं करता जब तक इसकी बुराई हद से ना गुजर जाए। कर्ज की अदायगी की फिक्र हजरत उमरू बिन मैमून अली अल्लाह से मरुए है, फरमाते हैं कि हजरत सीदना उमर फारूकी ने बोकत विसाल अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रीनीना से कहा कि देखो मेरे ऊपर बीतल माल का कितना कर्ज है। इन्होंने फरमाया कि 86,000। आप दिल अल्लाह ने फरमाया कि तुम मेरा तमाम माल फरोख्त करके रकम बीतल माल में जुमा करा देना, और अगर ये रकम ना काफ़ी हो तो फिर अपने माल से इसको अदा करना, और अगर फिर भी नाकाफी हो तो बनी यदी बिन कब से ले लेना, और अगर फिर भी कर्जा पूरा ना हो तो कुरैश से कर्जा की अदायगी का सवाल करना, और इनके अलावा किसी से ना कहना। ज़वाज मतहरात बनी उनको मुकद्दम रखना। हजरत असलम अली अल्लाह से मरुए है, फरमाते हैं कि मैंने हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु अलैहि से अर्ज किया कि सवारी और माल बर्दारी के
ऊँटों में एक अंधी ओनटनी। आप दलिया ने फरमाया वह ओनटनी किसी को दे दो, वो इससे नफा उठाए। हजरत अलसलम इल्ला है। आप फरमाते हैं मैंने अर्ज किया कि वो ओनटनी अंधी है। हजरत उमर फारूक सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया वो उसे ऊँटों की कतार में बांध लेंगे, वो उनके साथ फिरती रहेगी। मैंने कहा वो जमीन से घास वगैरह कैसे खाएगी? आपने फरमाया वो जजिया के जानवरों में से है या सदका के? ये इस वजह से पूछा कि जजिया का जानवर मालदार और फकीर दोनों खा सकते हैं और सदका का जानवर सिर्फ फकीर ही खा सकता है। मैंने कहा नहीं, वो जजिया के जानवरों में से है। हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया अल्लाह की कसम, तुम लोगों ने तो उसे खाने का इरादा कर रखा है। मैंने कहा मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस पर जजिया के जानवरों की निशानी लगी हुई है। इस पर आप अलैहि ने उसे ज़बा करने का हुक्म दिया, चुनांचे उसे ज़बा किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि के पास 9 चौड़े प्याले थे और हुजूर नबी करीम सलीम की अज़वाज मतहरात में भी तो थी, इस वजह से उनकी तादाद के मुताबिक प्याले आप अली अल्लाह ने बना रखे थे। हजरत सीदना उमर फारूक दी अल्लाह ने इस ओनटनी का गोश्त इन प्यालों में डाला और फिर हुजूर नबी करीम से की अज़वाज मतहरात उनके पास भेज दिया और जो गोश्त बीच गया उसे पकाने का हुक्म दिया। जब वो पक गया तो मुहाजिरीन व अंसार को बुलाकर इन्हें खिलाया। मेज़बानी का हक। एक मर्तबा हजरत सीदना उमर फारूक लिए मदीना मुनव्वरा के नवा में वाक़े एक गाँव में पहुँचे और इस गाँव में यहूदियों की तादाद ज्यादा थी। आप दलिया ने दरियाफ्त किया कि क्या यहाँ किसी मुसलमान का भी घर है? आप लिया अल्लाह को बताया गया कि यहाँ एक बदू मुसलमान रहता है जो बहुत गरीब है। आप अलैहि इस बदू के पास गए और इस बदू ने अपनी बीवी से कहा कि एक मेहमान आया है, इसके खाने का इंतजाम करो। बीवी ने कहा कि घर में थोड़े से जो के सिवा कुछ भी नहीं है। वो बदू बोला कि तुम गंदुम का आटा किसी से उधार ले आओ। बदू की बीवी ने हमसायों से पता किया मगर कहीं से गंदुम का आटा ना मिला। इसने मजबूरा जो की रोटियां बनाए और वो आप ही अल्लाह के सामने रख दी गईं। आपकी अल्लाह को ख्याल आया कि ये बदू और इसकी बीवी के अलावा उनके 3 बच्चे भी हैं, चुनांचे आप ही अल्लाह ने रोटियों का छठा हिस्सा यानी आधी रोटी खाई और बाकी बदू और उसके घर वालों के लिए छोड़ दी। फिर आप ये वहां से रुखसत हुए तो इस बदू से फरमाया कि तुम जब भी मदीना मुनव्वरा आओ तुम उम्र के मुतालिक पूछ लेना। कुछ अरसा बाद वो बदू और उसकी बीवी मदीना मुनव्वरा आए और हजरत सीदना उमर फारूक अली के मुतालिक दरियाफ्त किया। जब वो आप दिल्ली से मिले तो उन दिनों आपका तिजारती माल मदीना मुनव्वरा पहुंचा था। आप दुरानी ने वो तमाम माल इस बदू को अता कर दिया। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि हुजूर नबी करीम से अवाम की खिदमत में हाजिर हुए तो हुजूर नबी करीम से अवाम को तमाम वाक़या सुनाया और दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह है, क्या मैंने उनकी मेज़बानी का हक अदा कर दिया? हुजूर नबी करीम से तुमने फरमाया तुमने उनकी मेज़बानी का हक अदा नहीं किया और वो गरीब थे मगर फिर भी इन्होंने तुम्हारी मेहमान नवाजी की और उधार लेने से भी दरेग ना किया और अपनी कुव्वत से बढ़कर तुम्हारी खिदमत की जबकि तुम्हारे पास माल मौजूद था। चुनांचे तुम्हारा माल इन्हें अता करना कोई बड़ी बात नहीं। गुरूर का इलाज। हजरत अकर्रमा बिन खालिद ये से मरुए है, फरमाते हैं हजरत सीदना उमर फारूकी की एक साहिबजादे बालों में कनघा किए और उम्दा लिबास पहने आप कोई है के पास आए तो आप अली अलैहि ने इन्हें दर्रे मारे जिन पर वो रोने लगे। इस पर उम्मुल मोमिनीन हजरत हिफ्सा ने भाई का कसूर दरियाफ्त किया तो आप अलैहि ने फरमाया कि मैंने इसे मगरूर देखा, चुनांचे इसके गुरूर का यही इलाज था कि मैं इसे यूं बरे मारता। तुमने मुझे इस अजीम जात की याद दिला दी। हजरत मालिक उद्दरदा अल्लाह से मरुए है, फरमाते हैं कि एक रोज हजरत सीदना उमर फारूक अली को मुझ पर गुस्सा आ गया और आप अली ने मुझे मारने के लिए कोड़ा उठाया। मैंने फौरा कहा कि मैं आप दलिया को अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। मेरी बात सुनकर आप अलिफ ने फौरा कोड़ा फेंक दिया और मुझसे कहने लगे कि तुमने मुझे इस अजीम जात की याद दिला दी, एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद। हजरत सीदना उमर फारूक अल्लाह जब दायरा इस्लाम में दाखिल हुए तो आपको शहादत की बहुत आरज़ू थी और आप लिया है उसके लिए अक्सर वाओ बेशतर दुआ भी किया करते थे और अपनी इस ख्वाहिश का इजहार हुजूर नबी करीम से काम से भी किया करते थे। हजरत अनस बिन मालिक अली से मरुए है कि हुजूर नबी करीम से उहुद पहाड़ पर तशरीफ ले गए। उस वक्त आप मिले को उनके हमराह हजरत सीदना अबू बकर सिद्दीक, हजरत सीदना उमर फारूक और हजरत सीदना उस्मान गनी भी नहीं थे। उहुद पहाड़ ने कांपना शुरू कर दिया। हुजूर नबी करीम से हमने
उहुद पहाड़ को ठोकर लगाई और फरमाया, ए उहुद पहाड़ा ठहर जा, उस वक्त तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं। हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु की शहादत। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बनी इंजना से मरवी है, फरमाते हैं कि जब फिरोज अबू लुलू ने वालिद बुजुर्गवर हजरत सीदना उमर फारूक अली पर खंजर से वार किए और राबदिल्ली या शदीद जख्मी हो गए तो आप अलैहि को गुमान गुजरा कि शायद मेरा कब्ल किसी मुसलमान ने किया है जिसे वो नहीं जानते। आप ही अल्लाह ने हजरत सीदना अब्दुल्लाह बिन अब्बासीना को बुलाया और उनको अपने करीब बिठाने के बाद उनसे पूछा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं जानूं कि क्या मुझे कत्ल करने वाला मुसलमान है। हजरत सीदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास लिखा ने जब आप अलैहि की बात सुनी तो बाहर निकले ताकि जान सकें कि क्या इस कातिल का ताल्लुक मुसलमानों की जमात से है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास अल्लाह ने बाहर निकल कर देखा तो सब रो रहे थे। हजरत सीदना अब्दुल्ला बिन अब्बास लीजा ने वापस आकर बताया कि आपकी को कत्ल करने वाला मुसलमान नहीं बल्कि मगीरा बिन शोबा लाला का गुलाम फिरोज अबू लुलू है। हजरत सीदना उमर फारूक अली ने जब हजरत सीदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास भी नहीं की बात सुनी तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उनको कत्ल करने वाला मुसलमान नहीं है। फिर आप अली ने फरमाया, मैंने लोगों से फरमाया था कि तुम अपने पास हुजमी काफिर गुलामों को न लाओ, लेकिन तुम लोगों ने मेरा कहा नहीं माना। इसके बाद हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु ने हजरत सीदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास से फरमाया कि तुम जाओ और मेरे भाइयों को बल्ला लाओ। इन्होंने दरियाफ्त किया कि कौन से भाई। आप दलिया ने फरमाया, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, अब्दुल रहमान बिन उफ और साद बिन अबी वकास भी उनको हजरत सीदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास अली अल्लाह इन हजरात को बुलाने चले गए और आप मेरी गोद में सर रख कर लेट गए। जब तमाम हजरात इकट्ठे हो गए तो आप अली ने उनको मुखातब करते हुए फरमाया कि मैं आप 6 हजरात को लोगों का सरदार और उनकी क़यादत करने वाला पाता हूँ और ये खिलाफत तुम हजरात में छोड़ता हूँ, और जब तक तुम में इस्तिकामत रहेगी लोगों को भी खिलाफत पर इस्तिकामत हासिल रहेगी, और जब तुम में इख्तिलाफ होगा तो फिर लोगों में भी इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। फिर हजरत सीदना उमर फारूक दी अल्लाह ने फरमाया कि तुम 3 दिन तक लोगों से मशवरा करना और खुद में से एक शख्स को खलीफा चुन लेता। इस दौरान हजरत सईद रूमी ली और लोगों को नमाज पढ़ाए गए। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि फिर तबीब को बुलाया गया जिसने आप ये को दूध पीने के लिए दिया जो आप दही अल्लाह के जख्मों से बाहर निकलन आया। आप दलिया ने फरमाया, अगर उस वक्त मेरे लिए सारी दुनिया होती तो आइंदा आने वाली वशतों से बचने के लिए मैं इसे सदका कर देता। और ऐसा कहा, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सिवाय भलाई के और कुछ नहीं देखा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास भी बनाने जब आप अली की बात सुनी तो फरमाया कि अल्लाह ताला आपकी को जज़ाए खैर दे। हुजूर नबी करीम ने दुआ फरमाई थी कि अल्लाह ताला दीन इस्लाम को आप भी अल्लाह के जरिए मजबूत फरमाए। जब मुसलमान मक्का में खौफ में मुब्तला थे तो आप दलील अल्लाह ने इस्लाम कबूल किया और दीन इस्लाम को तक़वियत बख्शी। आप दलिया ने हिजरत की और आप ये की हिजरत हम मुसलमानों के लिए फतह मक्का का पेश खैमा साबित हुई। हुजूर नबी करीम से उनके शाना बशाना आप अली है हर गज़वा में शामिल रहे और अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। हुजूर नबी करीम ने हम के विसाल के बाद हजरत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ अली ने आपकी अल्लाह को अपना वजीर मुकर्रर किया और उनके विसाल के बाद आप दलिया खिलाफत के सबसे ज्यादा अहल थे। आप ही हैं ने अल्लाह ताला के दीन का परचम अरब से निकाल कर अजम में भी बुलंद किया और आप ही अल्लाह की कोशिशों से बेशुमार लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु के जरिए अपने दीन को वसअत अता फरमाई, यहाँ तक कि आप दलिया को मर्तबा शहादत पर फाइज किया। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ही ना फरमाते हैं कि हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु ने जब हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ना का कलाम सुना तो फरमाया, ए अब्दुल्लाह, ये किया तुम रोज हश्र मेरे लिए गवाही होगे। हजरत सीदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया, बल्ला शुबा। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए ही हैं। फिर मुझसे फरमाया, मेरा रुखसार जमीन से मिला दो और फिर अपना रुखसार और दाढ़ी जमीन पर टेक दी। इसके बाद आप डेली विसाल पा गए। हुजूर नबी करीम मलाइकाम के पहलू में सुपरिद खाक होने की ख्वाहिश हजरत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु ने अपने साहिबजादे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर नून को उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा लिया के पास भेजा कि वो इन्हें हुजूर नबी करीम लेने का काम और हजरत सीदना अबू बकर सिद्दीक़ अली
ان کے پلوں میں سپرد خاک ہونے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر علی نہ جب ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دینا کے پاس پہنچے اور ان سے والد بزرگوار کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن میں عمر صلی اللہ کی ذات کو خود پر ترجیح دیتی ہوں اور یہ جگہ ان کو عطا کرتی ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق علی کو جب بتایا گیا کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی جانے جگہ مرحمت فرما دی ہے تو آپ دلیا نے اپنے بیٹے حضرت عبد اللہ بن عمر بنی انجنہ سے فرمایا کہ میرے سر کے نیچے سے تکیہ ہٹا دو تاکہ میں اپنا سر زمین سے لگا سکوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ حضرت عبد اللہ بن عمر علی اما کو وصیت حضرت سیدنا عمر فاروق صلی اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر علینا کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا اور میرے کفن میں میانہ روی اختیار کرنا اور اسراف نہ کرنا، کیونکہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوا تو مجھے دنیا سے بہتر کفن مل جائے گا، اور اگر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوا تو یہ کفن بھی میرے پاس نہیں رہے گا اور مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ میری قبر کو زیادہ لمبی اور چوڑی نہ کرنا، کیونکہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر ہوا تو وہ میری قبر کو حد نگاہ وسیع کر دے گا، ورنہ میری قبر جتنی مرضی چوڑی ہو وہ اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں۔ امر خلافت کے لیے 6 نامزدگیاں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اللہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو صحابہ کرام بین اللہ کی ایک جماعت نے آپ سے خلیفہ کی نامزدگی کا مطالبہ کیا۔ آپ بھی اللہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس علی خان سے فرمایا کہ تم جا کر حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص بھی اللہ کو بلا لاؤ۔ جب یہ حضرات خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ دلیا نے فرمایا کہ میں خلافت کا امر تمہارے سپرد کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم نے اپنے وصال کے وقت تم سب سے راضی تھے، اس لیے میں یہ امر تمہارے سپرد کرتا ہوں اور تم خود میں سے ایک شخص کو خلیفہ مقرر کر لو۔